خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ون ڈے سیریز جیتنے پر جنوبی افریقہ کی کپتان کو ٹرافی دی۔ مسلسل 2 سنچریاں سکور کرنے پر سدرا امین کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا۔ محسن نقوی کی پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور کوچز سے ملاقات، خواتین کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا بھی گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد ہوئی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ون ڈے سیریز جیتنے پر جنوبی افریقہ کے کپتان کو ٹرافی دی۔ مسلسل 2 سنچریاں سکور کرنے پر سدرا امین کے لیے 20 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ محسن نقوی کی پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور کوچز سے ملاقات، خواتین کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا گیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کھلاڑیوں سے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ملاقات کی ہے، جبکہ کوچز بھی اس وقت وہاں موجود ہیں۔ اور ناظرین، مسلم لیگ نون کا آفس چلانے سمیت 5 مقدمات کا جیل ٹرائل، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کیسز کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پروسیکیوشن کے مزید گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے کیسز کی سماعت کی ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کا آفس جلانے سمیت 5 مقدمات کا جیل ٹرائل ہے، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے پروسیکیوشن کے مزید گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے کیسز کی سماعت کی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ابو بکر سے۔ جی ابو بکر بتائیے۔ ہاں جی بالکل، سرگوشی کی عدالت میں جیل ٹرائل پر سماعت ہوئی ہے، جس میں مسلم لیگ نون کا چلانے سمیت 5 مقدمات ہیں۔ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف کیسز کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے پروسیکیوشن کو مزید گواہان کو پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ مہلت دی ہے اور 24 ستمبر تک جو ہے وہ کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے، جبکہ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے ان مقدمات میں کوٹ لکھپت جیل میں جا کے سماعت کی ہے۔ ملزمان میں ڈاکٹر یاسین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ سمیت دیگر جو ہے وہ شامل ہیں، جبکہ جن لوگوں کو سزا ہو چکی ہے ان کیسز میں وہ عدالت میں جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے ٹرائل کے لیے، تاہم عدالت کی جانب سے جو ہے وہ ان کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ عالم چوک سے بانسا والے بازار کی مین روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ہیوی ٹریفک کے رات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے سڑک کا بار بار ٹوٹنا معمول۔ ٹریفک سست روی کا شکار، شہریوں کو اذیت کا سامنا۔ مزید بتا رہے ہیں محمد علی، بتائیے علی۔ جی میں لاہور کے علاقہ شاہ عالم چوک میں موجود ہوں اور یہاں سے سڑک جو میو ہاسپٹل کو ملاتی ہے وہ بانسا والی سڑک ہے۔ بانسا والا بازار جو ہے وہ بہت پرانا اور قدیم ہے، لیکن اس کی ٹوٹ پھوٹ کا منظر جو ہے اس کی وجہ سے ٹریفک بہت آہستہ چلتی ہے۔ شاہ عالم مارکیٹ کا جتنا بھی لوڈ صبح کے اوقات میں یا شام کے اوقات میں ہوتا ہے، اس کے بعد جو کارگو ٹرکس رات کو بانسا والے بازار سے کارگو اٹھاتے ہیں، ان کے ہیوی وزن کی وجہ سے، وزن ٹرکوں میں زیادہ ہونے کی وجہ سے سڑک آئے روز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے۔ بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور بارش ہونے کی صورت میں یہاں سے گزرنا محال ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس بار بار یہاں پہ ٹریفک کھلوانے میں مصروف رہتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ 2-3 علاقوں کو ملوانے والی سڑک جو سی ہے اس کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اس میں شاہ عالم چوک ٹوورڈ میو ہاسپٹل، گوال منڈی، جبکہ اردو بازار سائڈ اور اسی طرح موچی دروازے سے آنے والا جو راستہ وہ بھی اسی سڑک کو لنک کرتا ہے۔ آگے یہ سڑک جو سی ہے وہ ہال روڈ چوک کو ملتی ہے، نیلا گنبد چوک کو ملتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ شہر کی اہم سڑک ہے جو ایک برج کی مانند 2 علاقوں کو ملاتی ہے، لیکن اس کی حالت اس طرح خراب ہے کہ شہری جو ان سے وہ بمشکل دن اور رات کے اوقات میں گزرتے ہیں۔ شہریوں کو یہ مطالبہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو مین سڑکیں ہیں کم از کم شاہ عالم چوک کے راؤنڈ اباؤٹ جتنی بھی کمرشل مارکیٹ ہے وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے، ہیوی ٹریفک کی وجہ، رات کے اوقات میں آنے کی وجہ سے ناقص مٹیریل سے بنی سڑکیں بار بار ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کو بہتر مٹیریل سے بنایا جائے تاکہ شہریوں کو گزرنے میں آسانی ہو۔ آپ کا شکریہ علی۔ پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکل ٹیموں سمیت جنرل ہسپتالوں کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے۔ ایک مریض ایک تمہدار پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پروفیسر فاروق افضل کا اس متعلق کہنا تھا کہ صفائی کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات سجاد حسین سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے سجاد۔ میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل کی زیر اجلاس میں ہوا ہے۔
फयाद हुसैन ने भी इजलास में खसूसी शिरकत की। सैलाबज़दा इलाकों में मेडिकल टीमों समेत जनरल हॉस्पिटल की मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि जिला कसूर में मेडिकल टीमें मुतासिरीन के इलाज में मसरूफ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की पॉलिसी के तहत जो है वो मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी की जा रही है। प्रिंसिपल ने हदायत की कि एक मरीज एक तमादार पॉलिसी पर अमल दरामद को जो है वो यकीनी बनाया जाए। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा कि इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हेल्थ प्रोफेशनल की अव्वलीन तरजीह है। सफाई के म्यार पर कोई समझौता नहीं होगा। मुलाजमीन ड्यूटी औकात में महकमाना कार्ड अवेजा करेंगे। फारूक अफजल ने मजीद कहा कि इंतजामी डॉक्टर ओपन डोर पॉलिसी पर अमल करें। MS और डिप्टी चीफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट दिन में 2 बार इमरजेंसी का राउंड करें। गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। प्रिंसिपल ने तमाम शोबाजात की मूवमेंट के रजिस्टर रखने की भी हदायत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सचान। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का ऑनलाइन जायजा लिया। कारकर्दगी न दिखाने वाले ऑफिसर्स पर इजहार बरहमी, तमाम टाउन्स की सतह पर शिकायत को हल करने की हिदायत। MD वासा का कहना था कि अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला वासा की अव्वलीन तरजीह है। मसीह जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इजलास का अहवाल। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत कंप्लेन मैनेजमेंट का ऑनलाइन जायजा इजलास हुआ, जिसमें तमाम टाउन्स के डायरेक्टर और एक्सपीएन ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में शिकायत के इंदराज, हल और फीडबैक का जायजा लिया गया, जबकि इजलास में MD वासा ने कारकर्दगी न दिखाने वाले ऑफिसर्स पर बरहमी का इजहार भी किया। MD वासा ने तमाम फीडबैक को चेक करने की हिदायत जारी की और कंप्लेंट्स की फेक रेजोल्यूशन करने वाले अमले और अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों के अहकाम जारी किए। इसके अलावा तमाम टाउन्स की सतह पर शिकायत को हल करने के लिए खसूसी तवज्जो देने के अहकाम भी जारी किए। इजलास में गुफरान अहमद का कहना था कि तमाम टाउन्स में जंगी बुनियादों पर डिसिल्टिंग मुहिम शुरू की जाए। तमाम टाउन्स की सतह पर रोड साइड ड्रेन्स को भी मुकम्मल साफ किया जाए, जबकि ड्रेन्स को डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इसके अलावा MD वासा की तरफ से इजलास में डायरेक्टर्स को ये भी हिदायत जारी की गई कि किसी भी ट्यूबवेल पर लीकेज नहीं होनी चाहिए। लीकेज की सूरत में फौरी मुरम्मत करवाएं ताकि डेंगू मच्छरों की पैदाइश को रोका जा सके। इंसदाद डेंगू के लिए तमाम वासा ऑफिस की सफाई को यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए। आपका शुक्रिया। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र CCD की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 3 माह में 940 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं और 89 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। CTD महफूज पंजाब के हदफ पर अमल पैरा, दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 3 माह में 940 IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 89 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। CTD कार्रवाई के दौरान लाहौर और रावलपिंडी से 14-14, फैसलाबाद और भावलपुर से 7-7, जंग से 6, साहिवाल से 5 और गुजरांवाला से 4, गुजरात से 3, सरगोदा से 6 और भावल नगर से 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खिस्माबाद, 85 डेटोनेटर्स, 183 फुट हिफाजती फ्यूज तार, 717 पंफलेट, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई। दहशतगर्दों की शनाख्त इसहाक, शुएब, हमजा, जावेद इकबाल, इसहाक खान, जाहिद, सोहेल और असद के नाम से हुई। 3 माह में 13,521 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1,131 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ हिरास फैलाना चाहते थे। मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम शाहिद नदीम की जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने मुलजिम की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त से जमानत पर समाप्त की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने हक़ाइक़ के बरक्स डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल केस में नामजद किया। दरख्वास्त गुजार कत्ल में मुलविस नहीं, जमानत मुलजिम का कानूनी हक है, लिहाजा अदालत जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करे। मुद्दई के वकील ने जमानत की मुखालफत की और बताया कि मुलजिम शूटर के साथ था और कत्ल में मुलविस है। अदालत जमानत मुस्तरद करे। अदालत ने मुलजिम को जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। दूध और दही भी महंगाई की लपेट में आ गए। सरकारी रेट नज़रअंदाज, दूध और दही मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। दुकानदार कहते हैं सैलाब की वजह से रेट्स बढ़ गए हैं, जबकि शहरियों ने गिराम फरोशी का शिकवा किया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद।
दूध और दही की खरीदारी भी जेब पर भारी, सरकारी निर्ख नजरअंदाज। दुकानदारों ने दूध और दही की कीमतों में 10 रुपए का अज खुद इजाफा कर दिया। दुकानों पर दूध 210 रुपए और दही 250 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। दुकानों पर रेट लिस्ट तो आवेजा है, लेकिन इस पर अमल दरामद कहीं नहीं हो रहा। दुकानदारों का कहना है कि हालिया सैलाब के बायस फसलें तबाह हो गयीं, जानवरों का चारा महंगा हो गया। दूध और दही की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। सैलाब के बायस दूध देने वाले जानवरों की तादाद में भी कमी हुई है। खरीदारों का कहना है कि गरीब पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। सैलाब वगैरह आया हुआ है, भैंसें वगैरह भी कुछ मर गई होंगी, कुछ रुड़ गई होंगी, जो कुछ भी है। और चारा भी जो है वो भी, फसलें भी ख़राब हो गई हैं, चारा भी महंगा हो गया है। तकरीबन हर चीज़ ही महंगी हुई हुई है, तो उसमें किसी का ना खाने पीने की कोई चीज़ लग रही है, ना कोई जगह है, ना कोई सहूलत है किसी का किस्म की। इस हुकूमत का क्या फ़ायदा जो खुद वो अपने मसले हल करती है और आवाम के नहीं करती। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करके रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। सस्ता फ्यूल समझी जाने वाली एलपीजी करीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। मौसम गर्मा में भी एलपीजी माफिया सरगर्म है। शहर में ओगरा के निर्खों पर आमद दरामद भी ख्वाब बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्मा में भी एलपीजी माफिया सरगर्म, शहर में ओगरा रेट पर एलपीजी की फरोख्त ख्वाब बन गई। सस्ता फ्यूल समझी जाने वाली एलपीजी गरीब की पहुंच से बाहर। ओगरा ने सितंबर में एलपीजी की कीमत 215 रुपए फी किलो मुकर्रर की। शहर में 260 से 280 रुपए फी किलो फरोख्त जारी है। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग से शहरी परेशान, कहते हैं हर दुकानदार मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है। महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल किया है, अब 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। घरों में गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। सर जी एलपीजी का मसला है कि कोई एक रेट नहीं है, कोई 150 दे रहा है, कोई 260, कोई 290, कोई 300 भी दे रहा है। यानी कि अपनी इन्होंने बादशाही बनाई है किस्म ते गल ये कि सवारी है कोई नहीं, जे है तो वो पैसे नहीं देंगे। एलपीजी की कीमतों में होशरुबा इजाफे से दुकानदार भी परेशान है। एलपीजी दुकानदारों का कहना है माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, छोटे दुकानदारों को जुर्माने कर दिए जाते हैं। मनावा के इलाके सूतर मिल में गैस की बंदिश जोर पकड़ने लगी है। इलाके में गुज़श्ता 2 हफ्ते से गैस की फ्राहमी मुअत्तल है, जबकि मेन रोड पर जारी तरक्याती कामों के दौरान पाइप टूटने से इलाके की गैस भी मुअत्तल हुई है। इलाका मकीन शदीद अज़ियत से 2 चार हो चुके हैं। जीटी रोड पर खुदाई के दौरान सुई गैस पाइपलाइन टूट गई, जिस वजह से सूतर मिल समेत थाना मनावा के करीब कई इलाकों में गैस की फराहमी बंद हो गई। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि 12 रोज से जायद गुजरने के बावजूद गैस बहाल नहीं हो सकी। शिकायत के बावजूद सुई गैस हरमसपुरा ऑफिस का सुस्ती का मुजाहरा। मामूलाती जिंदगी रवा रखना नामुमकिन होता जा रहा है। गैस ना होने की वजह से सिलेंडर वगैरह में भरवाना पड़ता है, मुश्किल है। बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ना फिर लेके आना। गैस के मतलब ये है कि काफ़ी देर से नहीं गैस जो है ना आ रही। गैस ऐसे होती है कि जब बच्चों को स्कूल छोड़ने तो गैस चली जाती है, जब रात को खाना बनाना पड़ता है तब गैस चली जाती है, जब भी कोई मसला होता है जी गैस चली जाती है, जी आ नहीं रही, ये मसला वो मसला। बाकी ये मसले हमारे लिए बहुत परेशानी का आलम बन गया है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से काम जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ गैस बहाल करने का मुतालबा किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा होना होगा। इजराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका। गज़ा को बरवक्त सामान की फराहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान NDMA की जानिब से गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी जहाज रवाना करने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म और NDMA का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि गजा को बरवक्त सामान की फराहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया है। गजा और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए खतरा बन चुका है। बड़े भरपूर तरीके से कराची से, लाहौर से और मुख्तलिफ जगह से फ़्लाइट्स के ज़रिए जो है वो सामान अपने मुसलमान भाइयों को, अपने मजबूर और बेकस भाइयों को भेज रहे हैं। उनके साथ साथ NDMA का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अल खिदमत फाउंडेशन की सपोर्ट में उनके साथ खड़े हैं और उनकी नुमाइंदगी अली ज़रक साहब कर रहे हैं। इनको भी खराज तहसीन NDMA को भी करता हूँ कि जिन्होंने गजा के उन मजबूरों के दर्द को महसूस किया। मजमूई तौर पर 2227 टन सामान रवाना किया जा चुका है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त का जिम्मेदार पीसीबी को करार दे दिया। कहते हैं कप्तानों के बदलने की वजह से कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी कराची के 3,360 अरब रुपए का हिसाब दे। मगरिब सिर्फ फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम न करे बल्कि जालिम का हाथ भी रोके। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान ने भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त का जिम्मेदार पीसीबी को करार दे दिया। कहते हैं कप्तानों के बदलने की वजह से कौमी क्रिकेट टीम को शिकस्त हुई। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे में तमाम इस्लामी ममालिक को शामिल करना चाहिए। ये पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं है, पाकिस्तानी बोर्ड की परफॉर्मेंस ख़राब है। इसलिए कि टीम तो पाकिस्तानी बोर्ड सिलेक्शन कमेटी पूरा निज़ाम बनाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट को जिस निज़ाम की ज़रूरत है उसमें फ्लॉज हैं। इस पूरे दायरे को बड़ा होना चाहिए, पूरे आलम इस्लाम का ये दिफाई मुआहदा होना चाहिए और एक दूसरे के साथ तिजारती एतबार से भी और दिफाई एतबार से भी एक दूसरे को सपोर्ट करें तो दुनिया में कोई हमारा बाल बीका नहीं कर सकता और फ़लस्तीनियों को भी हक मिल सकता है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम सूबाई हुकूमतें नाक बनकर बल्दियाती निज़ाम पर बैठी हुई हैं, इसीलिए 25 सूबों की आवाज़ें आती हैं। पीपल्स पार्टी कराची के 3,360 अरब रुपए का हिसाब दे। बल्दियाती इदारों को तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। जो बुनियाद है हमारी डेमोक्रेसी की भी बुनियाद है और लोगों की आवाम को सहूलतें पहुँचाने की भी बुनियाद है, सब गासिब बने हुए हैं और अब इख्तियारात नहीं दे रहे निचली सतह पर, सब नाक बनकर बैठी हुई हैं सूबाई हुकूमतें। 3,360 अरब रुपए पिछले 15 साल में मुर्तज़ा वहाब की पार्टी पीपल्स पार्टी वो कराची के अवाम के खा चुकी है और ये गलत बयानी से काम लें। 3,360 अरब रुपए ये कोई छोटी रकम है, इसका हिसाब देना। वो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मज़ीद कहा कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मिलियन मार्च करेंगे। एक हफ्ते में तमाम किसान तंजीमों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके मुशावरत से लाहे अमल तय करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। मतवाज़न खुराक। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का विजन। पंजाब में 40 प्राइमरी स्कूलों के 10,000 बच्चों को कैलोरी से भरपूर खाने की फराहमी का आगाज़। मामून ख़ुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। पंजाब में 40 प्राइमरी स्कूलों के 10,000 बच्चों को कैलोरीज से भरपूर खाने की फराहमी का आगाज़। मामून ख़ुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट ने DG फूड अथॉरिटी के हमरा प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। फूड अथॉरिटी की टीम ने गवर्नमेंट सुलमानिया जूनियर मॉडल स्कूल के 280 बच्चों में तैयार खाना तकसीम किया। मामून ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट ने इस मौके पर कहा कि बच्चों को दिया जाने वाला खाना ग़िज़ाइयत से भरपूर और हर सर्विंग 480 कैलोरीज पर मुश्तमिल है। हम तकरीबन 40 स्कूलों में इस वक्त 10,000 बच्चों को इस प्रोग्राम के थ्रू केटर कर रहे हैं। हफ्ते में 5 दिन इन बच्चों को हम मील पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं, जिस एक मील की जो कैलोरीज में अगर देखा जाए ग़िज़ाई वैल्यू जो है 500 कैलोरी का एक मील तैयार किया जाता है। DG फूड अथॉरिटी आसिम जवेद ने कहा कि हफ्ते के 5 रोज़ मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चों को खाना दिया जा रहा है। फूड अथॉरिटी कम वसाइल के साथ 10,000 बच्चों में खाना तकसीम करने का अज़्म रखती है। हम इस दोनों प्रोग्राम्स के साथ साथ 10,000 बच्चों को फिजिकली हम मील दे रहे हैं और उसके साथ पूरे पंजाब के बच्चों के साथ मिल के उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम CM साहबा की क़यादत में उनकी रहनुमाई से इस पैगाम को हर एक गली और मोहल्ले के अंदर जो है वो फैलाएंगे। DG फूड का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी तर्ज पर डिज़ाइन किया गया। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का इंसानियत दोस्त इक़दाम। फ़राइज़ की अदायगी के लिख के दौरान जाम हक होने वाले PDM में ऑफिसर अब्दुर्रहमान के लिए 1 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का PDM में ऑफिसर मरहूम अब्दुर्रहमान की खिदमत को खराज तज़ीम। मरीम नवाज़ का अपने पैगाम में कहना है कि मरहूम अब्दुर्रहमान की सैलाब ज़दगान के लिए शब रोज़ मेहनत और खिदमत को याद रखा जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 22 डेंगू के कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में भी डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू ने पर फैला दिए। 24 घंटों में 22 डेंगू के कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में भी डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 1055 तक पहुंच गई। लाहौर में डेंगू के 166 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। शहर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा जारी। हॉस्पिटल्स में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। डेंगू के मरीजों को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी डेंगू SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। डेंगू सर्वेलेंस को तेज किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं बारिशों और सैलाब से डेंगू का खतरा बहरहाल मौजूद है। सैलाब से मुतासिर इलाकों में ज़्यादा डेंगू कार्रवाइयाँ
जल्द शुरू की जाए। इस संबंध में कोई कोताही या गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा, सैलाब मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब उतर रहा है लेकिन हमारी जिम्मेदारियां भी ख़त्म नहीं हुई। सैलाब ख़त्म होने के बाद इन इलाकों में हमारा काम मज़ीद बढ़ जाएगा। सैलाब मुतासर इलाकों में डेंगू और वबाई अमराज के हवाले से मुतहरिक और चौकस रहने की ज़रूरत है। जहाँ मलेरिया फैलने का ज़रा सा भी खदशा है वहाँ डेंगू ब्रिगेड भिजवाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सेहत सबके लिए मिशन को कामयाबी से हमकनार करना है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान कहती हैं, इंसदाद समूह के लिए माहौलियात फोर्स को 24 घंटे में फील्ड मुतहरिक करें। पैरा फोर्स भी साथ होनी चाहिए, जबकि ज़िगज़ैग की खिलाफ वर्जियाँ और स्याह धुआं पर ईंटों के भट्टे को मिसमार करते हैं। 15 अक्टूबर से बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट शहर में दाखिले पर लोडर गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मरीम खान की ज़रिए सदारत इंसदाद समूह के लिए ये अहम इजलास हुआ है। डीजी माहौलियात और तमाम अजला के डीसी समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर को महकमा माहौलियात ने समूह कैलेंडर पर ब्रीफिंग दी कि लाहौर में समूह का आगाज़ अमूमन अक्टूबर के पहले हफ्ते से होता है, जिसके लिए फॉल मॉनिटरिंग निज़ाम बन चुका है। लाहौर और शेखुपुरा में तमाम बायोलॉस प्लांट्स मुस्मान हो चुके हैं। कमिश्नर लाहौर ने कहा, रेत और मिट्टी से भरी ट्रालियाँ बगैर कवर शहर में दाखिल न हो पाएँ। आलरियो ट्रिपा हुकाम की गफलत, लाहौर की सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। 11 अहम सड़कों में गड्ढे पड़ जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गड्ढों की वजह से शहरी आए रोज़ हादसात का शिकार हो रहे हैं। टूटी फूटी सड़कें पाकिस्तान का दिल कहलाने वाले तारीखी शहर लाहौर की नई पहचान बन गईं। एलडीए और टीपा हुकाम की कोताहियों ने शहर की शाहराहों को खंडरात में बदल डाला। शहर की 11 अहम सड़कों पर 500 से जायद छोटे बड़े गड्ढे मौजूद हैं। सड़कों पर गड्ढों से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरी आए रोज हादसात का शिकार होने लगे। 32 किलोमीटर तवील फिरोजपुर रोड 310 मुकामात पर टूट फूट का शिकार है। 34 किलोमीटर तवील कैनाल रोड में 110 मुकामात पर गड्ढे पड़ चुके हैं। जीटी रोड के 21 किलोमीटर हिस्से के 93 मुकामात पर पिट होल्स रिपोर्ट। 7 किलोमीटर तवील शहर की तारीखी शाहराह माल रोड भी 9 मुकामात पर टूट फूट का शिकार है। शहरियों ने डीसी लाहौर से मुतालबा किया है कि शहर की सड़कों की फौरी और मयारी तामीर व मुरम्मत के लिए एलडीए और टीपा हुकाम को अहकामात सादिर करें। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर का इलाका हबीबुल्लाह पार्क मसाइल की आमाज का। कोटली पीर अब्दुर्रहमान में मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार। 25 साल से इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। अहले इलाका अजियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। लाहौर का इलाका हबीबुल्लाह पार्क बुनियादी मसाइल में घिर गया। कोटली पीर अब्दुर्रहमान गलियां 8, 18, 17, 16, 19 और 20 टूट फूट का शिकार। 25 साल से इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। अहले इलाका गलियां पुख्ता न होने पर अजियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाका मकीनों ने बताया कि वो गलियों में बारिश का पानी जमा हो जाने पर घरों में कैद होकर रह जाते हैं। हमारी ये हालत है कि हमारे जो बच्चों के रिश्ते हैं ना, वो भी इसी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जब बारिश होती है ना, इतना तो पानी खड़ा होता है, गाड़ी का निकलना मुश्किल। अहले इलाका का कहना है कि कोटली पीर अब्दुर्रहमान की पसमानदगी को देखकर उनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं होते। वज़ीर आला पंजाब यहाँ तरक्याती काम जल्द करवाने की हिदायत जारी करें। फिर वक्त इतना ही।